آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے ایک ایسے بھارتی یوٹیوبر جوڑے کی حقیقت جو لاکھوں فالوورز کے ساتھ دنیا بھر میں مقبول تھا، مگر تہران کی ایک بند کوٹری میں جب اس کے موبائل سے بھیجی گئی ایک لوکیشن پر بم گرا تو سوال اٹھا، کیا وہ واقعی صرف سیاح تھے یا دشمن کے سفیر؟ آج آپ جانیں گے وہ سب کچھ جو دنیا کو نہیں بتایا گیا اور شاید کبھی بتایا بھی نہ جائے۔ یہ ہے مسک اوریجنل، جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں وہ کہانیاں جو پردوں میں چھپائی جاتی ہیں۔ عامر اور پریا ایک خوبصورت مگر غیر معمولی بھارتی ہندو جوڑا جو یوٹیوب پر سیاحت کے نام پر لاکھوں دلوں کو مسحور کر چکا تھا، اس بار ایک نیا سفر لے کر نکلا۔ عامر کا واحد مقصد ایران کے بلوچستان ریجن تک پہنچنا تھا، وہ علاقہ جو پاکستان، افغانستان اور ایران کے سنگم پر واقع ہے۔ وہ پاکستانی بلوچستان نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سوچا ایرانی بلوچستان میں قدم رکھا جائے، شاید اس زمین کی مٹی میں کچھ اپنے پن کی خوشبو ہو۔ مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ نے وہ خواب جو عامر اور پریا نے کئی مہینوں سے بن رکھا تھا، چند گھنٹوں میں خاک کر دیا۔ 12 جون کی دوپہر استنبول سے اڑان بھر کر وہ تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے۔ تب انہیں کیا خبر تھی کہ اگلے 12 گھنٹوں کے اندر ہی سارا علاقہ لرز اٹھے گا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تہران کی فضا میں بموں کی گونج اور جیٹ طیاروں کی چیخ سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں ایران میں قید ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، نہ فلائٹس، نہ واپسی کا راستہ۔ فضائی حدود بند ہو چکی تھی، زمین پر صرف خوف اور آسمان پر بمباری کے سائے تھے۔ جنگ کی پہلی رات ان کے کچھ ایرانی دوستوں نے سہارا دیا۔ ایک ایرانی نوجوان نے تہران کی سنسان گلیوں میں اسے سیر کروائی، پر جب وہ صبح نیند سے جاگے تو حقیقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تہران ایک جنگ زدہ شہر بن چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے پریشان تھے۔ پاکستان کا راستہ بند تھا، عراق، ترکمانستان اور آذربائیجان کے لیے ویزا نہ ہونے کے باعث وہ بھی بیکار۔ آرمینیا واحد آپشن لگ رہا تھا جہاں آن ارائیول ویزا ممکن تھا، مگر خوف یہ تھا کہ کہیں جنگ کی لپیٹ میں وہ بارڈر بھی نہ آ جائے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور محض دعا باقی رہتی ہے۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے انٹری ویزا مل گیا۔ وہ پریا کے ساتھ تہران سے نکل کر آرمینیا کی سمت روانہ ہو چکا تھا۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دل بے قرار۔ راستے میں ایک ایرانی ٹیکسی ڈرائیور نے، جس کے چہرے پر تھکن اور ہمدردی کے آثار واضح تھے، انہیں بارڈر تک چھوڑا اور کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایسے لمحات انسان کی روح میں نقش ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ کوئی خفیہ آنکھ مسلسل دیکھ رہی ہے، جیسے ہر قدم، ہر حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہو۔ عامر کو اندیشہ تھا کہ کہیں آرمینیا میں بھی جنگ نہ چھڑ جائے۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتا تھا، پریا، میری قسمت ہی کچھ ایسی ہے، میں جہاں جاتا ہوں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ پریا کے چہرے پر خاموشی ہوتی، مگر آنکھوں میں سوال۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ محض اتفاق ہو، مگر کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ عامر کا ماضی کچھ اور ہی کہانیاں سناتا ہے۔ وہ جب لیبیا گیا تو وہاں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ افغانستان میں اس کی موجودگی کے دوران طالبان نے امریکیوں کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا۔ یوکرین میں وہ اس وقت موجود تھا جب روسی ٹینک کیف کی سڑکوں پر چڑھ دوڑے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف جب طلبہ تحریک شروع ہوئی تو عامر نے وہاں سے لائیو کوریج کی۔ اور ایران؟ وہاں کے شمال و جنوب کے چپے چپے سے وہ 4 بار گزر چکا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی احتجاج، کوئی بغاوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ملی۔ اس بار وہ استنبول سے تہران پہنچے تھے اور پہلی بار امام خمینی ایئرپورٹ سے داخل ہوئے تھے۔ پچھلی بار وہ دوسرے ایئرپورٹ سے قانونی طریقے سے داخل ہوتے رہے، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے نئی موبائل سم نکلوائی، حالانکہ بار بار آنے والے مسافر پرانی سم ہی رکھتے ہیں۔
एयरपोर्ट के बाहर एक अफगानी नौजवान से उन्होंने डॉलर को ईरानी करेंसी में बदलवाया। फिर तेहरान एयरबेस के करीब एक हॉस्टल में जाकर रुके। वो जगह बज़ाहिर सादा मगर बहुत हसास इलाके के करीब थी। रात के तकरीबन 12:30 बजे जब परिया नींद में जा चुकी थी, आमिर ने अपने मोबाइल फोन से एक मखसूस पन लोकेशन सेट की। वही ईरानी एयरबेस जो उनके हॉस्टल से बमुश्किल 500 गज के फासले पर था। उसने वो लोकेशन एक गैर महफूज अनजान नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजी। वो नंबर एक अनजान बैनुल-अक़वामी कोड से था, जिसकी इब्तिदा किसी मगरबी मुल्क की हो सकती थी, मगर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर तस्वीर मौजूद न थी। लोकेशन सेंड करने के सिर्फ 2 मिनट बाद उस नंबर से एक सिंगल टिक आया और फिर काली स्क्रीन। आमिर ने अपना फोन फौरन फ्लाइट मोड पर डाला। महज 10 मिनट बाद एयरबेस की जानिब से पहला धमाका सुनाई दिया। खिड़कियां लरज उठी, रोशनदान हिलने लगे और आसपास की इमारतों में हलचल मच गई। परिया हड़बड़ा कर उठ बैठी। आमिर ने उसे तसल्ली दी कि शायद करीब कहीं बम गिरा है, मगर वो जानता था उसने क्या किया है। पहला हदफ ईरान का मरकजी एयरबेस जो उनके क़यामगाह के बिल्कुल करीब था, मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पूरी दुनिया ये खबर देख रही थी, मगर कोई नहीं जानता था कि यह खूबसूरत जोड़ा आमिर और परिया न सिर्फ उन धमाकों की गवाही दे रहा था, बल्कि उस कार्रवाई का पहला खामोश इशारा भी दे चुका था। वो जो बज़ाहिर सयाह थे, यूट्यूबर्स थे, असल में क्या थे? उनकी यूट्यूब पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स थे। आमिर को मोदी ने भारत का बेहतरीन सफीर भी करार दे रखा था। और यूट्यूब वो सिर्फ मनाज़िर दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक गैर रिवायती हथियार बन चुका था, मालूमात जमा करने का, जहनों को काबू करने का और दुश्मनों के निज़ामों में दरार डालने का। आमिर और परिया उन भारतीय नेटवर्क्स से जुड़े थे जो ईरान, अफगानिस्तान, मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों में सॉफ्ट पावर और डिजिटल जासूसी के जरिए काम कर रहे थे। ईरान इसराइल जंग के फौरन बाद जब वो रूहे ईरान के मकाम पर एक ईरानी लड़की की मदद से वीडियो बना रहा था, ईरानी इंटेलिजेंस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कैमरा, रिकॉर्डर्स, मोबाइल फोन जब्त हुए। परिया को अलग कमरे में रखा गया। आमिर से इसराइल, भारत और उनके मकासद से मुताल्लिक तफ्तीश हुई। दोनों से पूछा गया, क्या तुम वाकई महज सयाह हो? क्या ये सब इत्तेफाक है या तुम्हारी हर हरकत मंसूबाबंद है? 2 घंटे की तफ्तीश के बाद उन्हें छोड़ तो दिया गया, मगर अब वो आजाद नहीं थे। हर कदम पर साए ताक़ुब में थे। आमिर जान चुका था वो और परिया अब सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहे, वो दोनों ईरान की नजरों में एक फाइल का उन्वान बन चुके थे। जब वो होटल वापस लौटे तो तेहरान की फजाएं वैसी ना थी। उनके अंदर भी खामोशी, थकन और एक खौफ समाया हुआ था। हर घंटी, हर दस्तक पर चूक जाते। उन्हें मालूम था कि इस बार निकलना आसान ना होगा, मगर आमिर की ज़हानत और परिया की अदाकारी ने उन्हें एक बार फिर ईरानी हुदूद से निकलने का मौका दिया। वो जो कुछ पीछे छोड़ गए थे, वो सिर्फ एक वीडियो, एक होटल या एक ईरानी एयरबेस की दास्तान न थी। वो एक खतरनाक खेल का तसलसल था जो अभी रुका नहीं था। उनका सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, बल्कि अब एक नए और कहीं ज्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका था। वो एक रोज के लिए भी तेहरान के उस होटल में ठहरना नहीं चाहते थे, मगर निकलने की राह भी बंद हो चुकी थी। तेहरान की फजा में इस्राएली ड्रोन्स की परछाइयां मुगला रही थी और सड़कों पर हर गैर मुल्की निगाहों का मरकज बन चुका था। आमिर और परिया ने फैसला किया कि वो कुछ दिन के लिए मंजर से हट जाएंगे। उन्होंने शहर से बाहर एक नीम देही इलाके में एक पुरानी मगर महफूज समझी जाने वाली इकामती जगह किराए पर ले ली। वहां वो किसी आम जोड़े की तरह रहने लगे, कम बोलते, कम बाहर जाते और सोशल मीडिया से मुकम्मल गायब हो गए। मगर ईरान की इंटेलिजेंस उनसे गाफिल ना थी। उनके ईरानी मेजबान को पहले ही मकामी थाने में मुतअद्दिद बार बुलाया जा चुका था। आमिर और परिया का हर कदम, हर लेन देन, हर व्हाट्सएप लोकेशन ट्रैक हो रही थी। वो जो समझते थे कि वो बच निकले हैं, दरअसल एक बड़े जाल के अंदर दाखिल हो चुके थे। परिया दिन में किताबें पढ़ती, मगर रातों को नींद से चूक जाती। आमिर उसे तसल्ली देता,
लेकिन उसकी अपनी आंखों के नीचे स्याह हल्के बढ़ते जा रहे थे। वो जानते थे कि उनकी गिरफ्त अब महज वक्त का सवाल है। फिर एक रात जब वो दोनों होटल के सहन में चहलकदमी कर रहे थे, एक काली गाड़ी आकर रुकी। 3 अफराद निहायत मुहज्जब लिबास में मगर नजरें चपती हुई बाहर निकले। उन्होंने आमिर से फारसी में पूछा, जनाब आमिर सिंह, क्या आप चंद सवालात के लिए हमारे साथ आ सकते हैं? परिया ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने नरमी से उसे रोका और कहा, बीबी, ये महज रूटीन इंक्वायरी है, आप फिक्र ना करें। मगर परिया जानती थी ये उनकी गिरफ्तारी है और शायद आखिरी। उन्हें एक खुफिया मकाम पर ले जाया गया जहां दरवाजे भी लोहे के थे और चेहरों पर भी चुप की जंजीरें। पहले 4 घंटे कोई सवाल नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी और दीवार पर लगी स्क्रीन पर मुख्तलिफ सीसीटीवी क्लिप्स, जिनमें आमिर और परिया तेहरान की गलियों में, ईरानी एयरबेस के करीब या किसी नौजवान हुसीना के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक बूढ़ा मगर सख्त गीर लहजे वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर अंदर आया। उसने कहा, तुम्हारी हर हरकत हमारे पास रिकॉर्ड है आमिर सिंह। तुमने ईरान में दाखिल होकर सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाई, तुमने हमारे दुश्मनों के लिए आंखें और कान बने हो। और तुम परिया, तुमने जिन खवातीन को सादा दोस्ती में लिया उनसे क्या मालूमात निकलवाई, हमें सब मालूम है। परिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर आमिर खामोश रहा। उसके सामने मेज पर 3 ममालिक के नक्शे रखे गए, ईरान, इसराइल और भारत। फिर एक सुर्ख कलम से उन तीनों के बीच एक खत खींचा गया और उस अफसर ने कहा, ये लाइन फितना हिंदुस्तान की है और तुम उस फितना के सफीर हो। अब उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कोई रस्मी इल्जाम, ना कोई अदालत, सिर्फ गैर मुअय्यना मुद्दत की तहवील। तफ्तीश जारी थी। दिन बीतने लगे, परिया बीमार पड़ गई, आमिर खामोश हो गया। इंटेलिजेंस की फाइलों में वो दोनों अब सयाह नहीं, जासूस दर्ज हो चुके थे और ईरान ने दुनिया को कुछ नहीं बताया। बस एक रोज ईरान के अंदरूनी जराए से एक मुबहम सी खबर चली। तेहरान में 2 गैर मुल्कियों को कौमी सलामती के पेश नजर तहवील में ले लिया गया है। किसी ने नाम नहीं पूछे, किसी ने कहानी नहीं जाननी चाहिए, लेकिन वो कहानी अब ईरान के खुफिया मुहाफिजों के हाथ में थी। ईरान में इन दोनों की तफ्तीश अभी जारी है और आमिर से कई अहम मालूमात मिलने की उम्मीद है। हुक्काम के मुताबिक ये मुमकिन है कि आइंदा दिनों में कुछ ऐसे इंकिशाफात सामने आए जो पूरे खत्ते की सिक्योरिटी पॉलिसी को मुतासिर कर दें। अगर अगली किस्त में ये तफसीलात और राज बेनकाब हो गए तो आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे और अपनी समातों से सुन सकेंगे। इस हिंदू जोड़े के पीछे कौन सा आलमी नेटवर्क काम कर रहा था, किन किन मुल्कों की पुश्तपनाही थी और उनकी असल मंजिल क्या थी। ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल मिस्क ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सुन सकें वो सब कुछ जो दुनिया नहीं सुनाती।